So this is how you can make CMA with Quick CMA in less than 10 minutes with just 3 clicks. So first of all, enter your desired CC limit in dashboard section. Suppose it's 30. And second step is that the actual year data import from Tally in just one click. So import it in just one click. Also press auto classify to classify it properly. And actual data has been imported from Tally. And now last step is just press make CMA. Your projections will be done and your CMA will be ready within 10 to 20 seconds. And here is what we can guarantee is that balance sheet will always be tallied and net profit ratio will be always equal to what you have set in the target increasing trend, and the drawing power will always come, and current ratio will always be maintained. And other important ratios will always be maintained. And here the quick CMA has found the results in less than 30 seconds and your CMA is ready. So welcome everyone. This is the quick demo and training session of quick CMA. Myself CMA Gupta, All India 26 rank holder in November 23 exams, CA final. So I am here with the concept of quick CMA. So it's an integration of Excel and artificial intelligence that can make the CMA data in less than 10 minutes. So basically our concept is that the CMA which involves the preparation of for the bank finance, it takes at least 1 to 2 hours. मतलब अगर लिमिट छोटी भी है तो it will take at least 1 to 2 hours. एंड उसमें अगर टर्म लोन्स हैं या फिर लिमिट बड़ी है या फिर प्रोजेक्शन काफ़ी साल का है तो इट विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स. सो उसको कैसे ऑटोमेट करके वी कैन रिड्यूस इट टू लेस देन 10 मिनट्स एंड जस्ट सिंपल क्लिक्स, मतलब विदाउट यूजिंग मच ऑफ अवर माइंड, विद द सिंपल क्लिक्स वी कैन मेक द CMA. So this is our concept. And the problems which we generally face in making CMA are, first, as I said, the time constraint, and second, the CMA is mainly dependent upon the professional Excelism. So the non-technical persons of our team, say suppose office में there are suppose non-technical person, it's very difficult for them to make CMA, and it's very difficult for the CAs to teach them how to make CMA. So we have solved this problem. Ultimately, anyone a fresher to the finance field and can make using the quick CMA software. So this is our USP. And talking about the next point, that is the variety coverage. In the CMA, the variety can be huge depending upon manufacturing sector. There's a stock adjustment, then there's service sector, and then there are term loan adjustments. So we have to cover it all, and we have covered it all in the software. So let me first start with the demo of the software. So first, these are the 3 steps of making CMA through quick CMA software. So step 1 will be configure the dashboard. Dashboard contains the basic details such as the name and type of firm, etc. So the dashboard में सबसे जो major important adjustment है, that is how much CC limit do you require. So how much the limit that is required, that is first step. And second step, CMA is basically what feeding of actual data and projection. So actual data can be imported from Tally in just one click through our software. So step 2 will be just press this import from Tally button, and actual data we will import from Tally and we will set in the CMA format. Now for projections, it's simple. Just press the make CMA button and we will project all the data for you and your CMA will be ready. मतलब in short, you have to first enter how much limit you desire, then import from Tally actual data and then press a button make CMA to project all the data. So what can you expect after pressing make CMA button? What the result will look like and what we can guarantee out of here is that for the projection years, your balance sheet will always be tallied, your net profit ratio will always be in increasing trend, and even you can set the net profit ratio, and your drawing power and MPBF will be as desired. मतलब जितनी आपने लिमिट एंटर की थी उतनी आपका MPBF और ड्राइंग पावर आएगा. और करेंट रेशियोज एंड आउटसाइड लायबिलिटी रेशियोज तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी रेशियोज, दैट विल बी अबव द मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल, मतलब जिससे बैंक फाइनेंस करेगी उससे अबव ही रहेगा. And we also have special utilities for term loan, depreciation calculator, and stock adjustment for manufacturing sector. So this is all, and at the same time, though we are claiming that we can make CMA in less than 10 minutes and just as a click of buttons, but we also ensure that जो accuracy रहेगी हमारी, that will be greater than your manual. और जो आप manually बनाते हैं उससे ज़्यादा detailed working है इसमें. एंड लॉजिक्स में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. व्हेन आई विल शो यू कि कैसे वर्क कर रहा है, देन यू विल ऑल्सो फील कि लॉजिक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्शन में जो मेन पैरामीटर्स रहते हैं सबसे, जैसे डेटर्स का, स्टॉक का और जो क्रेडिटर्स का, जो मेन पैरामीटर प्रोजेक्शन के वो होल्डिंग पीरियड के ऊपर बेस्ड है.
मतलब एक्चुअल पास्ट ट्रेंड कितना था उसको एनालाइज करके आगे के ट्रेंड सेट हुए हैं इसमें. सो वैसा कभी फील नहीं हुआ कि लॉजिक्स कॉम्प्रोमाइज है, बल्कि इट विल बी बेटर देन व्हाट इज डन बीइंग डॉट नाउ. So let's come to the dashboard first. Dashboard, here is the dashboard. Here are the contents of the dashboard. So dashboard में सबसे पहले there is the name of company and you can enter as per yourself, and constitution, individual, proprietorship और company, because proprietorship तो it's based on slab rates and partnership में फिर interest and remuneration की calculations है, and further जो tax rate है partnership का वो change हो जाता है, and company में भी dividend का concept आ जाएगा, एंड रिटेन प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एंड कंपनी में भी टैक्स रेट चेंज हो जाएगा, एंड कंपनी का टैक्स रेट कैन बी वेरिएबल ऑल्सो. सो यू कैन डिसाइड इट. एंड सबसे जो मेन पैरामीटर जो हमारे सॉफ्टवेयर का है दैट इज़ कि आपको लिमिट कितनी चाहिए. अल्टीमेटली दैट इज़ द कोर ऑफ आवर सॉफ्टवेयर. एंड आवर सॉफ्टवेयर इज़ फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि CMA फॉर्मेट आप अप टू 3 years का एक्चुअल कर सकते हैं एंड अप टू 9 years का प्रोजेक्शन कर सकते हैं, और टोटल हो गए 12 years. जैसे ये एक्चुअल में अप टू 3 अलाउड है, इन प्रोजेक्शन में अप टू 9 अलाउड है, 9 years का. तो ऐसे टोटल हो गया अप टू 12 years. एंड जनरली इंडस्ट्री में भी 12 years से ज़्यादा का CMA जनरली रिक्वायर्ड नहीं होता बैंक में भी. एंड ईयर 1 आपका कब एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 22-23, देन FY 22-23. एंड देन टाइप सर्विस है कि मैन्युफैक्चरिंग है कि ट्रेडिंग है. बिकॉज अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो उसमें स्टॉक एडजस्टमेंट्स आएंगे, अगर सर्विस हुआ तो उसमें रिसीवेबल्स में ज़्यादा फोकस होगा, मतलब दैट विल बी द बेस फॉर ड्राइंग पावर कैलकुलेशंस, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा कंसिडर नहीं होता है सर्विस सेक्टर में. एंड टैक्स रेट तो ऑटोमेटिक जो आप डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से. एंड एक्चुअल डेटा, अगर यही बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अगर एक्चुअल डेटा टैली में मेंटेन नहीं है तो फिर वो कैसा इंपोर्ट होगा. तो हमारा एक, जैसे मैं दिखा दूँ यहाँ पे, एक हमारा T फॉर्मेट है, खुद यहाँ से आप फीड कर सकते हैं डायरेक्टली. तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि मैनुअल फीडिंग, तो सारा डेटा टैली से डीलिंक हो जाएगा. अब आप T फॉर्मेट मैनुअली फीड कर सकते हैं एंड प्रोजेक्शंस आप अपना मेक CMA से कर सकते हैं. ये ड्राइंग पावर मिनिमम मेंटेन करने के लिए मार्जिन स्टॉक एंड डेटर्स में हटा के, मतलब स्टॉक नेट पेड स्टॉक्स आई मीन. So let's start with actual year 1. This is the cover page and ये हमारा एक्चुअल ईयर 1 है. सभी इससे पहले जस्ट मैं क्लियर कर दूँ इसको एक बार. सो ये टैली ओपन है. सो टैली में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि टैली में जो पीरियड है वो ऑलरेडी डिफाइंड होना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल ईयर 22-23. और जो टैली का हमारा इंपोर्ट का मैकेनिज्म दैट इज़ बेस्ड ऑन XML एंड इज़ नॉट बेस्ड ऑन ODBC. सो जो एक्सेल 2007, 10, 13, 16, 19, 365 अक्रॉस ऑल द एक्सेल वर्जन ही चलेगा. एंड टैली में टैली ERP प्राइम के प्राइम 5.0 तक एंड फर्दर रिलीज तक भी ये चलने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी. एंड जस्ट वी हैव टू प्रेस 2 buttons, import from tally and auto classify. So I press the button import from tally. तो ये टैली की जो ट्रायल बैलेंस है आप देख सकते हैं ये आ गया है. एंड सेकेंड आई हैव टू प्रेस ऑटो क्लासीफाई, मतलब जो टैली के लेजर है उसको CMA से लिंक करने के लिए. ये सक्सेसफुल हो गया. तो ये पूरा का पूरा टैली का ट्रायल बैलेंस आ चुका है. ये कलर कोडेड है, मतलब इसमें जैसे ही चेंज हो रहा है, ग्रुप में चेंज हो रहा है तो बॉर्डर्स गई हैं, फिर कलर भी चेंजेस हैं, ग्रेडियंट चेंजेस हैं, ताकि आपको एक ग्रुप का इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिख सके एक बार में. एंड इसके बाद अगर कुछ रहता है इसमें कि जो रिस्की एंट्रीज़ हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको रेड हाईलाइट कर देता है. अभी इसमें है नहीं रिस्की एंट्रीज एक्चुअली, कोई रिस्की लेजर्स हैं, मतलब जो अदर करेंट एसेट टाइप के लेजर्स हैं उसमें एक बार आप प्रीव्यू करने के लिए. तो ये हमारा प्रीव्यू फॉर्मेट है, प्रीव्यू कम फीडिंग. ये T फॉर्मेट है, मतलब ये जो CMA का फॉर्म है उसको हमने T फॉर्म में डिज़ाइन कर दिया है. ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये T फॉर्मेट में सेम CMA के फॉर्म को हमने इसको डिज़ाइन कर दिया. इसमें होगा क्या कि अगर आपको मैनुअली फीड करना है, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो इससे करना काफ़ी ईजी है कंपेयर टू CMA. सो आप यहाँ पे डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन पार्ट, कि सपोज़ सॉफ्टवेयर ने तो क्लासीफाई कर दिया, लेकिन आपको डिटेल जाननी है कि सपोज़ कि इसे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर एक्सपेंसेस है, तो उसमें कौन कौन से लेजर्स हैं जिसमें ये फिगर आया 537 का. तो उसके 2 मेथड्स हैं. सबसे पहले तो आप यहाँ पे जा सकते हैं टेबल में और फिर CMA क्लासिफिकेशन फ़िल्टर मार सकते हैं कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड.
तो ये आ गया कि इनका इनका क्लासिफिकेशन इन्हीं लेजर्स का सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। ठीक है, फिर अब सेकेंड मेथड है कि आपको जहाँ आपको जिस चीज़ की डिटेल चाहिए आप वहाँ पे कर्सर लाइए। सपोज मेरे को सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की चाहिए, फिर वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एफ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एफ, तो ये टेबल फिल्टर हो गई ये वाली। अल्टीमेटली सारी सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे आ गए। तो अब इसमें क्या है कि सपोज आपको क्लासिफिकेशन बदलना है, तो इससे सपोज बैंक चार्जेस है, ये सेलिंग में गया, आपको इसको इंटरेस्ट कॉस्ट में दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लास्ट कॉलम में आऊँगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन को बस मेरे को सिलेक्ट करना है और इसमें जो रेलेवेंट ऑप्शंस है, मतलब जो जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एक्सपेंसेस में कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आ जाएंगे आपके सामने। मतलब इसमें जो जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वही बस आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो बैंक चार्जेस का अपन डेटर्स या फिर क्रेडिटर्स में तो एंट्री करेंगे नहीं, इसलिए वो ऑप्शंस ही नहीं मिलेंगे। मतलब ये एक्सपेंस रिलेटेड ऑप्शन है इसमें बस, जैसे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट कॉस्ट, तो मैं इसको इंटरेस्ट कॉस्ट कर दिया बस। अब इसका क्लासिफिकेशन इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, अब ये CMA के इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड हो गया है, सेलिंग से हट के, और कुछ नहीं करना है इसमें आपको, ऐसा है। और इसमें एक पॉइंट और है कि जैसे सॉफ्टवेयर की जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी स्मार्ट है, इन द सेंस कि ये CMA में 2 एसेट्स के ऑप्शंस रहते हैं, एक है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, एक है एडवांसेस टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ये दोनों ग्रुप्स टैली में अवेलेबल नहीं है, मतलब टैली में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स नाम से, और सॉफ्टवेयर ने इसको क्लासीफाई किया है वर्ड्स पकड़ के, जैसे GST के ITC हो या फिर GST रिसीवेबल हो, तो या फिर TDS हो या एडवांस टैक्स हो, तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस है वो, तो उसको इसने ऑटो क्लासीफाई कर दिया है। अब आपको उसकी डिटेल देखनी है तो कंट्रोल शिफ्ट F, या डायरेक्टली टेबल में जाके फिल्टर मार सकते हैं। ये देखिए TDS एंड GST को इसने ऑटोमेटिकली एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस में डाल दिया। अगर आपको क्लासिफिकेशन चेंज करना है, सब आपको अदर करेंट एसेट्स करना है, तो आप क्लास ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ से जो रेलेवेंट क्लासिफिकेशन है जैसे अदर करेंट एसेट्स, ये सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये अदर करेंट एसेट्स में आ गया एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स से हट के। तो इसमें भी जैसे जो ऑप्शंस मिले आपको, वो जो एसेट में जो जो पॉसिबिलिटीज़ है आपको वो मिले, मतलब जैसे अदर करेंट, अदर नॉन करेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स, मतलब टैली के ग्रुप के हिसाब से आपका ड्रॉप डाउन्स बनेंगे सारे। अब यहाँ पे क्लियर फिल्टर्स कर दीजिए। अब यहाँ पे आएंगे वापस से, तो आप देख सकते हैं कि अदर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस 0 हो गया एंड जो अदर करेंट एसेट्स है वो आ गए। ऐसे एक एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट बैंक है, FD विद बैंक। FD विद बैंक का टैली में कोई ग्रुप नहीं होता, बट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपना स्मार्टली क्लासीफाई कर देता है उसको। जो क्लासिफिकेशंस हैं फ्रॉम टैली वो 90% सही है, और उसमें आपको एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है स्टॉक या फिर नेट प्रॉफिट की, ये ऐसे ही एज इट इज़ सही है। एक बार मैं इसको डिफ़ॉल्ट क्लासिफिकेशन में वापस सेट कर देता हूँ ऑटो क्लासीफाई करके। ये हो गया वापस से सेट। अब एक्चुअली ये टू भी सेम है एक्चुअली। आपको एक बात ध्यान रखना है कि 2 टैली ओपन नहीं होना चाहिए एक साथ, तो वो प्रीवियस वाला टैली से ओपन फिगर करेगा। तो भले आप पुराने टैली को क्लोज करके नया वाला इंपोर्ट कीजिए, या फिर आप यहीं से कंपनी बदल सकते हैं। ये सेकेंड ईयर की कंपनी खोल लेता हूँ मैं, और पीरियड बदल दिया अप्रैल 23 मार्च 24। अब ये इसमें पुराना डेटा, ये इंपोर्ट फ्रॉम टैली प्रेस करना है मेरे को। ये हो गया इंपोर्ट, और ये ऑटो क्लासीफाई। ये आ गए सारे फिगर्स। अब एक बार मैं इसको आपको वहाँ से टैली से भी मैच करा देता हूँ। GPR है 12,53,000, NPR है 6,27,000, GP 12,53,000, NP 6,27,000, यानी ये बैलेंस शीट का टोटल है, ये 97 लाख अप्रॉक्स। तो ये टैली है। आपको किसी भी चीज़ का ब्रेकअप देखना हो, सपोज आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पूरा एक साथ देखना है, तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे कंट्रोल शिफ्ट F, तो ये सारा आ जाएगा एक बार पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। फिर आपको कुछ चेंज करना है तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन से वहाँ से चेंज कर सकते हैं क्लासिफिकेशन उसकी। तो ये हो गया टैली इंपोर्ट वाला पार्ट। अब इसमें एक सिनेरियो और आता है कि आपके पास टैली सपोज नहीं है, मतलब टैली में डेटा मेंटेन नहीं है, तो मैनुअल फीडिंग करनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए एक बटन है आपका यहाँ पे, डीलिंग विद टैली, आप वो दबाएंगे, ये पूरा 0 हो गया। आप मैनुअली जो फिगर फीड करना है कर सकते हैं इसमें। तो ये आपका CMA मतलब डायरेक्टली CMA का फॉर्म है, T फॉर्मेट में, विच इज़ मोर कन्वीनियंट। अब वापस से इसमें टैली है तो वापस से लिंक विद टैली कर दीजिए, ये पूरा का पूरा वापस आ गया।
तो ये हो गया इंपोर्ट वाला पार्ट। अब इंपोर्ट में एक चीज़ और बच रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो रहता है, स्टॉक आइटम भी अपने को बाइफरकेट करना पड़ता है कि रॉ मटेरियल से कि फिनिश गुड से, क्योंकि वो प्रोजेक्शन के लिए काफ़ी काम आएगा। तो हमने क्या किया है कि जो टैली में आपका स्टॉक आइटम मेंटेन है, हमने उसका क्लोजिंग बैलेंस इंपोर्ट कर लिया। फिर आप उसके बाद उसको बता दीजिए कि वो रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स है, बाय डिफ़ॉल्ट वो सबको फिनिश पकड़ेगा। सपोज इसे ये बटन दबाया इंपोर्ट फ्रॉम टैली करके, ये क्लास सक्सेसफुल हो गया। अब मैं सपोज ये वाला आइटम को रॉ मटेरियल कर दिया 85,000 का, तो आप देखेंगे एक्चुअल ईयर 1 में जाके तो आपको क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल्स का अलग, ये फिनिश गुड्स अलग अलग दिखेगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल है, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई चेंजेस नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में अगर बहुत बड़ा स्पार्ट टाइप के केसेस हैं, मतलब जिनका टर्नओवर ही बहुत है, जहाँ कैपेसिटी बेस्ड है, मतलब जहाँ क्वांटिटी सेलिंग के सीए में, तो एट प्रेजेंट अभी नहीं है, लेकिन वो नेक्स्ट वाले वर्जन्स में आ जाएगा क्वांटिटी सेलिंग के जो सीए में। अभी डायरेक्ट वैल्यू पकड़ लेता है क्लोजिंग स्टॉक की वो। तो ये ट्रेडिंग सेक्टर है, इसलिए मैं इसमें फिनिश गुड्स ही कर दिया हूँ। अब लेट्स मूव टू द प्रोजेक्शन पार्ट। मतलब प्रोजेक्शंस में एक्चुअली कुछ स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहले अपन वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि उस पर जनरल प्रोजेक्शन से जो सीएमए वाला है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। सो डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन अवर इनकम टैक्स एक्ट WDV मेथड। तो इनकम टैक्स एक्ट के लिए अपने को प्रोजेक्ट करना है डेप्रिसिएशन, तो अपने को चाहिए ओपनिंग WDV। सो ओपनिंग WDV कैसे आएगी? जो लास्ट ईयर की जैसे ऑडिट रहेगी वहाँ से हम क्लोजिंग फेच कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सेकेंड ईयर का डेटा है, या सेकेंड ईयर का डेटा है, उसमें डायरेक्टली मैं वहाँ से फेच कर लूँगा क्लोजिंग WDV एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट की, वही ओपनिंग बन जाएगी, और उसमें डेप्रिसिएशन रेट डिफाइन करके सारे अगले सालों का प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो एक बटन बस प्रेस करना है आपको कैलकुलेट डेप्रिसिएशन करके। तो जो भी प्रीवियस ऑडिट का फिगर्स होंगे, जो ईयर 2 का डेटा है टैली का, उससे इसने क्लोजिंग बैलेंस उठा लिया साले। फिर आप डेप्रिसिएशन रेट अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, बाकी मैक्सिमम केसेस पे ये सही पकड़ेगा इनकम टैक्स के हिसाब से। और कुछ एडिशन डिलीशन हो तो आप वहाँ बता सकते हैं, यहाँ पे मैनुअली फीड कर सकते हैं। वैसे कुछ है नहीं, 0 कर देता हूँ, बाकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया हर साल का। क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन लॉजिकल होना चाहिए, अपन ऐसा नहीं कर सकते कि 5% इंक्रीज़ कर दिए, डिक्रीज़ कर दिए, तो वो इलॉजिकल हो जाएगा काफ़ी। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट की जो शीट है उसको हम लोग ने 3 कैटेगरी से बांट दी है। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, एंड थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। टर्म लोन का इंटरेस्ट एंड ऑल। सो जो वर्किंग कैपिटल है और जो अनसिक्योर्ड लोन है वो काफ़ी सिंपल है, आपको बस रेट डिफाइन करना है अपने हिसाब से, जो भी रेट है आपका इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा इंटरेस्ट इसमें। और जो टर्म लोन है उस पर मैं स्पेशल फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है जब टर्म लोन आ जाता है सीएमए में। सो सॉफ्टवेयर में हमारे टोटल 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला डिफ़ॉल्ट मेथड है जो हल्का सा शॉर्टकट है, एंड सेकेंड इज़ द परफेक्ट मेथड जो अलग से शीट है उसकी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परफेक्ट वाला मेथड दिखाता हूँ। ये टर्म लोन शीट, ये मेथड तभी काम करेगा जब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता है। मतलब आपका ओरिजिनल टर्म लोन कितने का था, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पट रही थी, और आपका टेन्योर कितना है टर्म लोन का। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ पता है एक्चुअल पे, तो ये वाला मेथड बेस्ट है। और अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, मतलब आपको पता नहीं कि ओरिजिनल लोन कितने का था, जितना बैलेंस शीट में दिख रहा है बस आपको वही पता है, या आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि लोन कब से स्टार्ट हुआ, तो फिर वैसे केस में जो टर्म लोन का फर्स्ट मेथड है, जो डिफ़ॉल्ट है, वो बेस्ट है। तो ये वाले मेथड जो परफेक्ट मेथड है उसमें आप डिफाइन कर दीजिए कितने का टर्म लोन है। सपोज 40 लाख का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 10% है, एंड टेन्योर सपोज 12 ईयर्स है, और इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है सपोज जून 2020 से। तो ऐसे कैलकुलेट दबाऊंगा मैं, तो ये जून 20 से लेके टोटल 12 ईयर्स तक का EMI शीट निकाल देगा पहले। तो ये जून 20 से लेके 12 ईयर्स, मतलब मे बी मई 2032 में भी, मई 2032 वहाँ तक का ये मंथ वाइज इसने वो निकाल दिया कि कितना कितना प्रोजेक्शन है इसका। अब ये इसका फाइनेंशियल ईयर वाइज समरी बना दिया इसने, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, एंड अवर इंस्टॉलमेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून। सो उसके हिसाब से समरी बना दिया फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। और जो हमारा प्रोजेक्शन है उसका फर्स्ट ईयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 24-25 से,
तो वो सारे फिगर्स मतलब इंटरेस्ट हो गया, इसका प्रिंसिपल हो गया, शॉर्ट टर्म बैलेंस हो गया, लॉन्ग टर्म बैलेंस हो गया, वो ऑटोमेटिकली क्लासीफाई कर देगा। ये अब फिगर्स ऑटोमेटिक आ गए उस शीट के हिसाब से। अगर आपको फर्स्ट मेथड देखना है कि शॉर्टकट वाला जो हल्का सा, तो इसमें क्या करता है वो कि जो रिमेनिंग टर्म लोन पीरियड है, जो बैलेंस शीट में दिख रहा है आपका रिमेनिंग टर्म लोन का अमाउंट, वो ले लिया इसने। इंटरेस्ट आप बता सकते हैं, और टेन्योर इसने जनरली जितना प्रोजेक्शन है उसका डबल या थ्राइस ले लिया, तो उसके हिसाब से वो सेम फिर EMI वगैरह बाकी सब प्रोसेस सेम है पूरा। मतलब ये काफ़ी ईजी है, इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, ये बाय फॉर्मूला ही हो जाएगा ये, विदाउट एनी इंटरवेंशन और रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट। फिर ये DSCR है, दैट इज़ डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो DSCR की जो शीट है दैट इज़ मेनली यूज फॉर टर्म लोन। ओके, सो लेट्स कम टू द प्रोजेक्शन पार्ट। सो जो प्रोजेक्शन जो मेन कोर है CMA का, वो कैसे किया हमने और कैसे हमने क्वालिटी एश्योर की, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये CMA का फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब ये फॉर्मेट कहीं भी कोई सी भी बैंक में एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोर पैरामीटर्स है जो बार बार चेक करना ही पड़ता है हमको, जैसे बैलेंस शीट का डिफरेंस कितना है, टैली है कि नहीं, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना चल रहा है अभी, और ड्राइंग पावर कितनी निकल रही है एट प्रेजेंट, एंड करेंट रेशियो का क्या हाल है, ऐसा। सो जो ये वाले पॉइंट्स हैं उनको हमने फ्रीज़ कर दिया, मतलब आपको हमेशा दिखते रहेगा, अब जैसे चेंजेस करते रहेंगे आपको ये दिखते रहेगा ये वाले पॉइंट्स। और अल्टीमेटली तो CMA में बस एक ही बटन दबाना है, मेक CMA लिमिट डाल के। बट कैसे क्वालिटी एश्योर की और क्या क्या कंट्रोल पैरामीटर्स हैं आपके पास, वो एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये कंट्रोल पैनल है एक प्रकार से। द फर्स्ट वन इज़ द डैशबोर्ड, ये तो डिटेल्स डैशबोर्ड से आ रही है, यहाँ पे कुछ एडिटेबल नहीं है। एंड सेकेंड इज़ द टारगेट नेट प्रॉफिट रेशियो। सो जो नेट प्रॉफिट का रेशियो है हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर में, वो आप खुद डिफाइन कर सकते हैं आपको कितना प्रोजेक्शन ईयर्स में चाहिए। और जैसे कि 3.36 मेरा पहला फर्स्ट ईयर का ऑडिट का था, सेकेंड 3.2 था, तो जो प्रोजेक्शन में मैंने अज्यूम कर लिया इंक्रीज ऑफ 0.5, तो मैंने इसको सपोज 3.5 एंड 3.3 एंड 3 इसको मैं कम कर देता हूँ थोड़ा, जो भी कर सकते हैं आपको जैसा मानो, मतलब 3.4 कर दिया। तो ये जितना आपने टारगेट सेट किया अल्टीमेटली आपका नेट प्रॉफिट रेशियो इतना ही आने वाला है। एंड नेक्स्ट इज़ अ प्रोजेक्शन में वेरिएबल्स। सो जो प्राइमरी वेरिएबल्स हैं हमारे, दैट इज़ स्टॉक, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, दैट इज़ बेस्ड ऑन द होल्डिंग पीरियड। और जो होल्डिंग पीरियड के ऊपर बेस्ड है ये, तो होगा क्या कि जैसे हमारे पास एक्चुअल ऑडिटेड डेटा है 2 ईयर का, तो उसमें से सॉफ्टवेयर ट्रेंड एनालिसिस करेगा, मतलब कि 2 साल में कितना था उसका सपोज एवरेज निकाल लिया है, फिर उसका मिनिमम निकाल लिया, फिर उसके हिसाब से वो आगे की प्रोजेक्शंस करेगा। मतलब से सपोज ये फिनिश गुड्स है, इसमें 131 फर्स्ट ईयर था होल्डिंग पीरियड, सेकेंड ईयर 148, तो सॉफ्टवेयर ने कुछ फॉर्मूले से 133 निकाला मिनिमम, और जो आने वाले साल हैं उसमें इतना मिनिमम तो इतना रहेगा ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से इन्फ्लेट हो गया, एकदम से डिफ्लेट हो गया, या फिर एकदम से जितने भी एडजस्टमेंट सब पूरा स्टॉक में हो गया, डेटर्स में हो गया, और एक कंसिस्टेंसी रहेगी। और तो ये, और सेकेंडरी हमारा जो सेकेंडरी वेरिएबल है, मतलब स्टॉक एंड क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, इसको तो क्विक CMA में ये होगा चेंज। और जो आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ जाए, तो ये कैश एंड बैंक के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट है। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस मिलेंगे, सबसे पहला कैश एंड बैंक, एंड सेकंड करंट एसेट्स, एंड थर्ड करंट लायबिलिटी। तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं कि ये तीनों में से कहाँ पे जाएगा, एंड आप इसकी मिनिमम मैक्सिमम रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली ज़्यादा कैश अपन रख नहीं सकते क्योंकि फाइनेंस होगा नहीं वैसे में, और ज़्यादा अदर करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी में भी नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली आप ये रेंज सेट कर दीजिए, भले ही वो 2 से 3 हो, जैसे 2 से 5 हो सपोज, तो अब इसके बीच ही जो आपका आने वाला है वो इसी के बीच आएगा, मतलब 2 लाख से 5 लाख के बीच ही आपका कैश आएगा। और डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड अपना स्टॉक चेंज होंगे, और नेट प्रॉफिट भी अपना जितना सेट किया उतना ही आएगा। अब एक बार मैं आपको मेक CMA प्रेस करके बताता हूँ। बाय लिमिट सपोज मैं 30 की कर देता हूँ यहाँ पे, वापस से CMA फॉर्म में आया। आपको कुछ ये कंट्रोल पैनल सिर्फ फॉर व्यूइंग पर्पजेस है, मतलब इसमें ऐसा कुछ आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ अल्टीमेटली बटन दबाना है। तो मेक CMA प्रेस करने के बाद अप्रॉक्स 30 to 40 सेकेंड्स में इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, और अगर नॉर्मल केस हो और अगर थोड़ा सी बड़ी लिमिट हो या फिर नंबर ऑफ ईयर ज़्यादा हो तो फिर वो विदिन 2 मिनट्स तो आ ही जाएंगे ऐसे रिजल्ट्स इसके। ये क्विक CMA फाउंड द रिजल्ट्स, ये आ गया। अब एक बार देखते हैं क्या क्या इसने बैलेंस शीट टैली कर दी है, और नेट प्रॉफिट ये अपन ने सेट किया था, नेट प्रॉफिट उतना ही आएगा, 3.25, 3.3, 3.4 इतनी अपन ने सेट किया था वहाँ कंट्रोल पैनल पे। ऐसे मैं अगर दिखाऊँ
तो ये कंट्रोल पैनल पे अपने इतने सेट किया था टारगेट, और जो एक्चुअल है वो भी सेम है। एंड सेकेंड जो प्रोजेक्शंस है हमारे, ये देखिए इसे इसका इसने स्टॉक का जो प्रोजेक्शन लिया है वो 147 लिया है, तीनों ईयर्स में कांस्टेंट है होल्डिंग पीरियड, जो कि 133 मिनिमम से ज़्यादा है। तो ये प्रोजेक्शन एकदम लॉजिकल है कि 147 तीनों साल में, मतलब उसने होल्डिंग पीरियड अज्यूम किया है। फिर क्रेडिटर्स का होल्डिंग पीरियड इसने 38, 41, 44 इंक्रीजिंग ट्रेंड में अज्यूम किया है। एंड डेटर्स का यहाँ से बेटर शो होगा डायरेक्ट मॉनिटरी टर्म्स में, ये 14.66, 14.8 एंड 14.91। एंड मैं कैश एंड बैलेंस दिखा देता हूँ एक बार। कैश बैंक अपन ने लिमिट सेट की थी 2 से 5 के बीच, तो 2.14, 2.46, 2.79। तो अल्टीमेटली जो अपने पैरामीटर सेट किए हैं वो सारे के सारे इसमें उसी के बीच में रेंज होगा, और रिजल्ट्स आपका फिक्स है क्या आना है। अब मैं आपको उसमें चेंजेस करके बताता हूँ कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि एक बार आपने CMA तो बना लिया, लेकिन बाद में सपोज़ आपको कुछ चेंज करना है, मेरे को क्लाइंट नहीं बोल दे मेरे को लिमिट हायर चाहिए, या फिर मेरे को 3 ईयर्स का प्रोजेक्शन की जगह 5 ईयर्स का प्रोजेक्शन चाहिए, या फिर कुछ भी आपको लगा कि चेंजेस, तो फिर बार बार आप वही फंस जाएंगे कि आप वापस से प्रॉफिट चेक करेंगे, फिर बैलेंस शीट टैली करेंगे। तो अल्टीमेटली इसमें चेंज करना बहुत ईजी है। सपोज़ मैं कैसे दिखा रहा हूँ आपको कि सपोज़ लिमिट का करते हैं एक बार। लिमिट 30 है, 30 से अपने को 100 चाहिए सीधा। तो वापस में मिक्स CMA में आया, CMA फॉर्म में मिक्स CMA। अभी कुछ टैली नहीं देख सकते हैं, बैलेंस शीट टैली नहीं है, प्रॉफिट वगैरह सब हाईलाइटेड है, ये वाला पोर्शन पूरा। तो अब वापस से मिक्स CMA प्रेस किया मैं, तो 100 की लिमिट है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा ये। और आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो सेल्स ऑटोमेटिकली 5 टाइम्स मिनिमम मेंटेन रहेगी इसमें नायक कमेटी के कारण। ये हो गया उसका। तो ये देखिए बैलेंस शीट टैली है इसमें, और नेट प्रॉफिट रेशियो उतने ही जितना मैं टारगेट सेट किया था, 3.25, 3.3, 3.4। जो ड्राइंग पावर या फिर MPBF बोल रहे हैं वो 100 से ऊपर ही है मिनिमम से, और जो करेंट रेशियो 1.33 से ऊपर ही है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि प्रोजेक्शंस कैसे किए हैं इसने। तो इसने 103 की होल्डिंग पीरियड के हिसाब से फिनिश गुड्स का किया है, एंड 10 के हिसाब से क्रेडिटर्स का किया है। अक्रॉस द ईयर स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि बहुत फ्लक्चुएट हो रहा होल्डिंग पीरियड। एंड डेटर्स भी इसने इंक्रीजिंग ट्रेंड में किया है, 26, 27, 29 होल्डिंग पीरियड, नंबर ऑफ डेज। एंड एक बार कैश एंड बैंक दिखा दूँ मैं आपको। तो ये देखिए 100 की लिमिट अपने ने सेट की थी, और कैश एंड बैंक ये है इसका 2.11, 3.33, 4.94, 2 से 5 के बीच है। आप अल्टीमेटली कितना भी कर लीजिए, जो आप डिफाइन करें उसके बीच ही रहेगा ये। अब नेक्स्ट है कि आपको सपोज़ चेंज करना है फॉर्म में, तो चेंजेस करना कितना ईजी है फॉर्म में। सो सपोज़ आप जो डेटर्स है, क्रेडिटर्स है एंड स्टॉक है, उसको तो आप चेंज कर नहीं पाएंगे वैसे, क्योंकि वो होल्डिंग पीरियड के ऊपर ही बेस्ड होगा और वो अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर ही निकालेगा। लेकिन बाकी सब आप पूरा चेंज कर सकते हैं, अल्टीमेटली एक्सेल है ये, और उसमें सारे फॉर्मूला ओपन है अभी भी। से सपोज़ मेरे को चेंज करना है, मेरे को अपना इन्वेस्टमेंट्स चेंज करना है। इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने बढ़ाया है प्रोजेक्शन में, वो मैंने किया है 5% के हिसाब से बढ़ाया है, तो आपको उसको 10% से बढ़ाना है। तो आप एक्सेल में फॉर्मूला बदल देंगे 1.1, और एक ही बार करना पड़ेगा आपको, जैसे आपका जनरली अब जैसे करते हैं एक बार कर दीजिए, फिर बाकी में तो इतना भी नहीं लगेगा। और सॉफ्टवेयर ने कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जैसा रहता है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ सेट है। तो ये मैंने 10% से बढ़ा दिया। अब एक फीचर हमारे यहाँ प्रोजेक्शन करने के लिए कैलकुलेटर भी है, वो भी शो करता हूँ मैं आपको। प्रोजेक्शन कैलकुलेटर नाम है उसका। सपोज़ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, इसमें सॉफ्टवेयर ने बाई डिफ़ॉल्ट इसको 2% से बढ़ाया है, तो अब चाहें तो इसको 5% से बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल एक्सेल का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके। एंड एक और तरीका है जिसको प्रोजेक्शन कैलकुलेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जिस जिस सेल्स में आपको इंक्रीज़ करना है वो सेल सिलेक्ट किए अपन, जैसे 1, 2, 3। अब यहाँ पे Ctrl+Shift+C, तो अब ये पूछेगा आपको क्या क्या एक्शन परफॉर्म करना है। इंक्रीज़ बाय परसेंट, सपोज आपको 5% इंक्रीज़ करना है तो आप 5 डाल देंगे, ऑटोमेटिक कर देगा। इंक्रीज़ बाय सेल्स का रेशियो, जिस रेशियो से सेल्स बढ़ रहा है आप उस रेशियो से इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये अदर एक्सपेंसेस में बहुत काम आता है। और इंक्रीज़ बाय वैल्यू, सपोज आपको 50-50 बढ़ाना है हर साल, तो आप या तो एक्सेल फार्मूला से कर दीजिए या फिर यहाँ से कर दीजिए। तो सपोज़ मैं इंक्रीज़ बाय परसेंट करता हूँ, मैं डाल देता हूँ 5, तो ये ऑटोमेटिक तीनों साल 5% से इंक्रीज़ हो गया। मतलब अगर आपको फार्मूला नहीं लगाना है एक्सेल का तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, वो आपके बिहाफ में फार्मूला लगा देगा, ऐसा है।
तो अब जैसे मैंने चेंज किया इतना, फिर मेरी बैलेंस शीट मिसमैच हो गई पूरी। और मैं थोड़ा सा चेंज आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी करके बताता हूँ। सेलिंग एंड ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। सपोज मेरे को इसको सेल्स के रेशियो से बढ़ाना है, इंक्रीज बाय रेशियो इन सेल्स। ओके, ये बढ़ गया, पहले से था एक्चुअली। सो ऐसा करने के बाद जैसे अपना सब फिगर डिस्टर्ब हो गए हैं अपने, तो अल्टीमेटली आपको जो भी आप चेंजेस करेंगे, या तो फिर आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर लीजिए जो 0.3 0.25 का डिफरेंस आ रहा है कहीं पे भी, या तो फिर आप मेक सी में प्रेस कर दीजिए। फिर मैं मेक सी में प्रेस किया, ये फिर अल्टीमेटली टैली हो जाएगा वहाँ जाके, और जो आपने एडजस्टमेंट्स किए हैं उसको कुछ नहीं होगा, मतलब जो आपके चेंजेस है वो इंटैक्ट रहेंगे, बाकी फिर वो मेक सी में जाके अल्टीमेटली वो फिर सॉफ्टवेयर अपना वर्क कर देगा। ये चेंज हो रहा है। अभी ये जो आप देखें सब प्रॉब्लम ट्रायल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव सेल, ये यही मतलब सॉफ्टवेयर का कोर है। अल्टीमेटली बहुत सारे परमिटेशन ट्राई करता है वो, कि जो बेसिक पैरामीटर्स हैं सीएमए के, जो एक सीए को पता होता है जनरली, तो वो जाके सॉफ्टवेयर कोशिश करता है कि उसके पास पहुंचने की कम से कम। अब इसमें चेंजेस के कारण थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है वैसे, और ऑटो टाइमर भी है इसमें। अगर 60 सेकेंड्स में ये नहीं कर पाया तो ऑटोमेटिक दूसरी मेथड पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें मेथड्स भी हमने टोटल 6 मेथड्स रखे हैं इसमें, कि अगर फर्स्ट वर्क नहीं किया तो सेकंड, सेकंड वर्क नहीं किया तो थर्ड, थर्ड वर्क नहीं किया तो फोर्थ। जैसे इसने बोला कि मैक्सिमम टाइम लिमिट रीच हो गई है, तो मैं इसको स्टॉप कर दिया। ये ऑटोमेटिकली मैसेज दे रहा है कि मैं सेकंड मेथड पे शिफ्ट हो रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ये सेकंड मेथड पे जाके हो जाएगा। वैसे ये होता काफ़ी कम है कि वो फर्स्ट में ना दे पाए, शिफ्ट होना पड़े उसको। ये तुरंत दे दिया सेकंड मेथड से, तो वही अल्टीमेटली सेम ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस किए नहीं थे हम लोग ने। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एकदम हायर चेंजेस करके बताता हूँ, मतलब एकदम सिग्निफिकेंट ड्रास्टिक चेंजेस, तो उसमें सॉफ्टवेयर कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या डैशबोर्ड में, और यहाँ पे लिमिट में 1000 कर दे रहा हूँ सीधा। मतलब इस क्लाइंट का टर्नओवर ही 2 CR था, अब इसकी लिमिट ही 10 CR है, मतलब कम से कम ऐसे CMA में आया मैं। तो इसमें ड्रास्टिक चेंज है, मतलब ऑडिटेड में इसका 2 करोड़ का टर्नओवर था, अब इसका टर्नओवर ही सीधा 50 करोड़ का हो गया है, मतलब 25 टाइम्स टर्नओवर इंक्रीज़ हुआ है। तो ऐसे में कैसे करेगा, मतलब एकदम टिपिकल केस में। तो ऐसे में क्या होगा कि वो फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड में थोड़ा फेल होगा, क्योंकि करंट रेशियो मेंटेन करना है, करंट रेशियो इतनी हायर इंक्रीज में नहीं होता मेंटेन, तो वो कैपिटल एडिशन भी कर देगा इसमें। तो अल्टीमेटली काफ़ी सारे मेथड्स हैं इसमें, मतलब कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बेसिक पैरामीटर्स में, वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा फेल होके। फॉर एग्जांपल मैं इसको मेक सी में दबाया, तो ये फर्स्ट मेथड रन हो रहा है अभी, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये इसमें रीज़न आया कि सॉल्यूशन में फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो कैपिटल एडिशन करना पड़ेगा इसको मेंटेन करने के लिए करंट रेशियो। सो मैं प्रेस किया सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में भी एरर, नेक्स्ट ये थर्ड में कहीं ना कहीं हो जाएगा, ये थर्ड या फोर्थ में। अल्टीमेटली ये हो गया, मतलब अगर जी टाइम लेगा भी ऐसे केसेस पे तो मैक्सिमम वो 1 मिनट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये एकदम रेयर केस था, इसमें इसने कैपिटल एडिशन भी किया होगा। जस्ट अ सेकेंड, करंट रेशियो को उतना मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अचानक से इतनी लिमिट बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कैपिटल इंट्रोड्यूस तो करना ही पड़ा होगा। जैसे 136, मतलब 136 लाख का कैपिटल एडिशन है इसमें। बाकी पैरामीटर्स दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट टैली है, नेट प्रॉफिट जितना डिसाइड किया था अपन ने उतना ही है, और ड्राइंग पावर भी सेम है, जो डिज़ायर्ड थी उससे ज़्यादा ही है। करंट रेशियो भी मेंटेन है इसमें, और ये इसके प्रोजेक्शन के पैरामीटर्स हैं। ये इसने होल्डिंग ली है उसकी फिनिश गुड्स की 84 अप्रॉक्स, एंड क्रेडिटर्स की 111 स्टैंडर्ड होल्डिंग पीरियड, एंड डेटर्स की भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में। एंड जो इसमें कैश एंड बैंक बैलेंसेस है, वो जो अपने 2 से 5 किलोमीटर की थी वो उसी के बीच रहेगा।
जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे। मैं दिखा देता हूँ एक बार, 2.1, 3.2, 4.9 उसी के बीच है अल्टीमेटली। सो और एक चेंजेस और करके दिखा देता हूँ मैं। अगर सपोज़ आपको 5 ईयर का चाहिए CMA अचानक से, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस इसको 5 सेलेक्ट कर देना, ऑटोमेटिक सारी शीट्स बदल जाएंगे। ये CMA देखिए 7 ईयर्स का हो गया है। 5 में एक बार मैं 20 की लिमिट बनाता हूँ। CMA फॉर्म, मेक CMA। मतलब अल्टीमेटली आप कोई भी चेंजेस करें, आप डैशबोर्ड में चेंजेस करें, ईयर्स बढ़ाएं या फिर प्रोजेक्शन अपने हिसाब से करें, आपको अल्टीमेटली मेक CMA बटन प्रेस करना है, अल्टीमेटली आप वहाँ पहुँच जाएंगे। सो ये थोड़ा सा 7 ईयर्स का, इसलिए थोड़ा सकता है ये टाइम ले सकता है एक्चुअली, क्योंकि 7 ईयर्स जनरली 7 ईयर्स का प्रोजेक्शन करने में तो टाइम लगता ही है। तो ये भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट मैक्सिमम 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। ये इसे निकाल दिया फाउंड द रिजल्ट्स करके। ये इसमें जो भी पैरामीटर्स अपन ने सेट किए थे वो वहीं पे वहीं एज इट इज़ है। और उसके बाद CMA का फॉर्म टू 6 फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड कंपेरेटिव स्टेटमेंट, वो लिंक है ऑटोमेटिकली CMA से। इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है इसमें कोई भी चेंजेस, ऑटोमेटिक फार्मूला से आ जाएंगे। और लास्ट है फाइनेंशियल इंडिकेटर वाली चीज़, ये भी पूरी लिंक है CMA से, तो इससे भी रिक्वायर्ड नहीं है। फिर मतलब ये था डेमो ऑफ क्विक CMA। सो अल्टीमेटली अगर मैं समराइज़ करूँ तो आपको लिमिट डालनी है, एंड एक्चुअली इसका डेटा आप टैली से इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो प्रोजेक्शंस हैं वो जस्ट आप मेक CMA प्रेस कर सकते हैं। तो एक बार में वैसे हो जाएगा 90% केसेस में, पर ये टिपिकल केस है बहुत, कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन में ईयर्स ज़्यादा है या फिर एकदम से लिमिट बढ़ा दिया आपने, तो वैसे केसेस में वो 1-2 बार फेल होके कोई ना कोई मेथड से हो जाएगा अल्टीमेटली ऑटो स्विच होके। सो दिस वॉज माई ट्रायल टू ऑटोमेट द CMA। सो अल्टीमेटली आपका 90% टाइम तो कम से कम सेव होगा। एंड यू कैन बाय द सॉफ्टवेयर फ्रॉम www.quickcma.in। एंड मेरा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आप अगर सॉफ्टवेयर को ख़रीदें तो अल्टीमेटली आपका एक CMA बनाने से ही उसका प्राइस निकल जाए। मतलब प्राइसिंग भी ऐसी डिसाइड हुई है कि जिनको भी रियल में एक्चुअल प्रॉब्लम है उस बिना सोचे इसको कम से कम कंसिडर कर सके। एंड सपोर्ट टीम स्टाफ भी अवेलेबल है एनी टाइम फॉर द सपोर्ट ऑफ क्विक CMA। हो सकता है कि थोड़ी शुरू में ट्रेनिंग लगे आपको। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।